नमस्कार। आदरणीय राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, आप सभी नवनिर्वाचित हमारे माननीय सदस्यगण, राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी जी, मीडिया के मित्रगण, राज्यसभा सचिवालय के सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी, a warm welcome to our newly elected members of Rajya Sabha in this orientation program, especially designed for them. My congratulations on your election. Some of you are new, others may have had previous experience of the Rajya Sabha. This is an occasion of refreshing your experience and hand-holding the new colleagues. About the relevance of such orientation program, it will be instructive to recall the observations once made by late Subhas Kashyap ji. And you know, Subhas Kashyap ji was not only he served as a Secretary General of Lok Sabha for a very long time, but a very distinguished scholar. संसदीय कामकाज की प्रणाली और सारी चीजों के बारे में जो देश के कुछ एक जानकार लोग हैं उनमें से होते हैं. He told about the relevance of this orientation program. Members find themselves confronted with an atmosphere entirely different from what they were used to outside or what they expected to find inside. The new members are often completely lost in the dense forest of conventions, traditions, rules, regulations, formalities, and procedure of a modern legislative assembly. My present duty to welcome Honorable Chairman. Sir, we are delighted and thankful for your gracious presence today. You have so very kindly consented to inaugurate this orientation program and to deliver your keynote address that will be guidance for the members. Sir, on behalf of this august gathering and on my own behalf, I thank you for sparing some time to be with us today. You have been very keen in a smooth running of the House, which I have seen, and in its productive debates. You allow more and more members, particularly the new members, to participate in the debates. Members are given time rather liberally to present their viewpoint, even in the 0 hour. You often relax the rules to accommodate maximum possible numbers. Mani Sadasyagan, members must realize that Honorable Chairman ensures, it's a very important point, that Rajya Sabha allocates similar time for very important some debates on a bill as allocated by Lok Sabha, though the size of our house is half of the Lok Sabha. Effectively, members get double time to speak in Rajya Sabha. माननीय सदस्यगण, आज दुनिया के 84 देशों में बाइकैमरल सिस्टम है. दुनिया के सभी विकसित देश, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि बाइकैमरल है. यह सदन पहले सदन द्वारा किए गए फैसले को रोकता नहीं बल्कि उसको और रिफाइंड करता है अपने डिबेट से. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स फ्रॉम दिस हाउस. भारतीय संसद लोकतंत्र का यह सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है. यदि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है तो दूसरा सदन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है. यह सदन संसदीय लोकतंत्र के प्रतिनिधि चरित्र को और व्यापक करता है. आपको अधिकार है सदस्य के रूप में सरकार की जवाबदेही तय करने का, आप जो क्रिटिकल पॉइंट समझते हैं उनको सामने लाने का, सही रास्ता और विकल्प जो समझते हैं उनको बताने का, सलाह देने का. आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं, जनहित के विषय उठा सकते हैं, विधेयकों पर उसे सलाह दे सकते हैं. सदन के रूल्स और प्रोसीजर के अंदर ऐसा करने के बहुत सारे डिवाइसेज हैं, पर उन्हें जब आप रूल्स प्रोसीजर को अच्छी तरह पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है. आवश्यक है कि आप नियमों और प्रेसिडेंट्स की अच्छी जानकारी रखें. अगले 2 दिन आपको इन नियमों और प्रेसिडेंट्स की भी जानकारी दी जाएगी. मित्रों, आज अगर हम हैं कलीग्स यहां तो संविधान की वजह से हैं, जिसने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस दी हैं. मैं याद करना चाहूंगा डॉक्टर अंबेडकर साहब को. उन्होंने चेतावनी एक हम सबको दी है. 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने अंतिम भाषण में जो कहा वो हमेशा रेलिवेंट है हर देशवासी के लिए और हम लोगों के लिए खास तौर से और भविष्य के लिए भी. क्या कहा उन्होंने? आई कोट, विल इंडियंस प्लेस द कंट्री अबव देयर क्रीड और विल दे प्लेस क्रीड अबव द कंट्री? I do not know,
but this much is certain that if the parties place the creed above country or independence will be put in a jeopardy a second time and probably the lost forever. यानी हमने राजनीतिक दलों के अपने हित को देश के हित के ऊपर रखा तो भारत एक बार फिर गुलाम बनेगा और शायद हमेशा के लिए गुलाम बनेगा। यह डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी है। 26 नवंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी डॉक्टर अंबेडकर की इस बात को तस्दीक किया। उन्होंने कहा, आई कोट, A constitution like a machine is a lifeless thing. It acquires life because of the men who control it and operate it. And India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. भारत को आज कुछ बहुत ईमानदार लोगों की जरूरत है जो देश के हित को आगे रखे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन था। फिर 16 मई 52 को उन्होंने स्वाधीन भारत की पहली चुनी संसद को पहली बार एड्रेस किया और हम सांसदों की भूमिका के बारे में भी कहा कि भारत की एकता को बनाना, बचाना और उस हर प्रवृत्ति को कमजोर करना जो देश की एकता के रास्ते में आए, ये हमारा दायित्व है। राजेंद्र बाबू ने हम सबसे अपेक्षा की। निसंदेह सांसद बनना बड़ा सम्मान का काम है, बड़ी जिम्मेदारी का और चैलेंजिंग भी। आज हम अमृतकाल में भारत की संसद में जा रहे हैं और दुनिया में आज अगर आप देखें जिस तरह का टर्मोइल है, अगर आर्थिक ताकत आप नहीं बनते हैं तो बड़ी चुनौतियां सामने हैं। हम किस तरह से अपने बातचीत बहस में इन सारे मुद्दों को लाएं और एक आपसी सहमति से हम हल निकालें, इस तरह का माहौल बनाने का काम आपको संसद में ही मिलता है। आपको संसदीय समितियों में भाग लेने का अवसर मिलेंगे जहां बजट मांगों पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, अन्य गैर सरकारी विशेषज्ञों से जानकारी हासिल कर सकेंगे। आधिकारिक दस्तावेज मिलेंगे, आप उन्हें अवश्य पढ़ें और समिति की हर बैठक में सक्रिय भाग लें। आप बजट दस्तावेजों की जानकारी करें, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जब मैं नए सांसद के रूप में आया तो मैंने पढ़ना और सीखना शुरू किया कि बहुत सारे टर्म्स उसके बड़े अपरिचित होते हैं। इसलिए उस टर्मिनोलॉजी को, बजट को अगर अच्छी तरह आप समझेंगे तो आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। इसी तरह समितियों की रिपोर्ट बहुत ही वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है जिसका संदर्भ आप सदन की बहसों में और प्रश्नों में कर सकते हैं। हाल के वर्षों में पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का महत्व दुनिया में बढ़ा है। अब दुनिया इट्स अ ग्लोबल विलेज। आप देखते हैं एक जगह कोई मामूली समस्या होती है, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। भारतीय संसद विश्व स्तर पर अनेक संसदीय संगठनों जैसे IPU, CPA, P20 आदि की सक्रिय सदस्य है। इसके अलावा मित्र देशों के साथ संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का बाइलेटरल आदान प्रदान भी होता है। आप में से सभी लोगों को कभी न कभी अवसर मिलेगा कि आप बाहर में भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करें। हमारा संसदीय ज्ञान, आचरण, दुनिया के बारे में, बदलती स्थिति के बारे में हमारी जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि हम जाकर भारत के संसद का नाम और आगे बढ़ा सकें। संसद की कार्यप्रणाली को जानने के लिए आपको रूल्स, प्रोसीजर, कन्वेंशंस और प्रेसिडेंट जानना ही जरूरी नहीं है, साथ ही यह भी जरूरी है कि रूल्स के पीछे क्या डायनेमिक्स ऑपरेट करता है वह भी हम जाने, जो 2 दिनों में आपको यहाँ चर्चा में सामने चीजें आएंगी। क्या क्वेश्चन और का इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊं। अकाउंटेबिलिटी किस तरह इंश्योर करता है। 1957 में डॉक्टर राम सुभग सिंह, आप पुरानी चीजों को पढ़े तो पहले देश के मान्य विपक्ष के नेता हुए थे। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा और उसे मुधड़ा कांड हुआ जिसको आगे बढ़ाया फिरोज गांधी ने, और उस वक्त के जो इस विभाग के मंत्री थे कृष्णाचार्य, उनको इस्तीफा देना पड़ा। एक क्वेश्चन से मैं आपको अनेक प्रेसिडेंट गिना सकता हूं, पर सदन न चलने का मुल्क पर कितना नुकसान होता है यह आभास हमें होना चाहिए। देश की आजादी के जब 50 वर्ष हुए तो 97 में संसद ने सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन पारित किया कि क्वेश्चन आवर को या मेंबर्स आवर को, 0 आवर को हम कभी भी सस्पेंड नहीं करेंगे, वेल में नहीं जाएंगे। लेकिन यदि देश, संसद अपना रिजोल्यूशन पास करके उस पर कायम न रहे तो हम लोगों को कैसे आश्वस्त कर सकते हैं। अगर संसद अपनी बातों पर कायम न रहे तो क्या हम देश से अपेक्षा कर सकते हैं। ये हमारे लिए आत्मविश्लेषण का विषय है। जब मैं पहली बार सांसद बन के आया तो आदरणीय प्रणव बाबू, उनसे मैं मिला, ग्रेटेस्ट स्कॉलर। उन्होंने एक बात मुझे कही कि जब वो संसद में आए तो MC छागला साहब ने उनको कहा था कि हमेशा सुबह से शाम आप बैठे रहो, अपने आप चीजों को आप समझेंगे। और मैं कह सकता हूं कि देश के कुछ बेस्ट पार्लियामेंट्रियंस जो उनमें प्रणव बाबू थे। तो आपसे भी आग्रह होगा कि हम सुबह से शाम तक बैठें और बारीकियों से हर एक डिबेट को सुने, अलग के मत को भी सुने, तभी आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रख सकते हैं।
और ट्रेनिंग का क्या महत्व है, मैं दो लाइन में एक चीज और कहना चाहूंगा। एक बार जब मैं पत्रकार था तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के साथ मुझे चीन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया। वहां आज के उनके जो राष्ट्रपति थे तब वहां के इंचार्ज हुआ करते थे। यानी देश 5 वर्षों बाद दुनिया कैसे बदल रही, हमारा नेतृत्व कैसे होना चाहिए, 10 वर्ष बाद क्या होना चाहिए, जनसंख्या कितनी होगी, अर्बनाइजेशन कितना होगा, टेक्नोलॉजी कैसे होगी, उसके अनुसार हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर टेक्नोलॉजी ने पंचायत स्तर से ऊपर तक ये ट्रेनिंग का महत्व है। मैंने तो आज आग्रह किया अपने ऑनरेबल चेयरमैन से कि हमें भी हर 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष पर क्या ऐसी चीज हम इवॉल्व कर सकते हैं कि बदलती दुनिया में हम कैसे और सक्षमता से अपने संसद में बातें रख सके, इसके लिए कुछ इस तरह की चीज हो सके लगातार। तो हम देखें पिछले 10 वर्षों में 12 वर्षों में कहूं कि सदन को जिस तरह बदलते मैंने देखा है। पहले क्वेश्चन और स्पेशल मेंशंस हमें लिख करके सबमिट करने पड़ते थे, अपने टिकट फॉर्म के साथ सबमिट करने पड़ते थे, पार्लियामेंट्री पेपर्स के बंडल आते थे, महीने में इतने पेपर्स आते थे कि कमरे में रखना मुश्किल होता था। 2026 में पेपरलेस संसद और सचिवालय। मैं अपनी बात खत्म करूं इसके पहले आपको 10 बड़े चेंज बहुत ब्रीफली नैरेट करूंगा। पहला, आज हर नोटिस इज नाउ डिजिटल। पहले सब कुछ सर्व किया जाता था, आदमी घर घर हर सांसद के यहां जाता था। संसद सेतु और मेंबर्स पोर्टल, इसको कभी जाकर देखिए कितना इसका महत्व है। ई फाइल एंड द डिजिटाइजेशन ऑफ आवर रिकॉर्ड्स। आप कल्पना कर सकते हैं राज्यसभा ने 40 लाख डॉक्यूमेंट्स कैसे डिजिटाइज किया, कितनी बड़ी चीज अपनी यहां हुई। हम इसको इस्तेमाल करें। जब हम लोग आते थे किसी विषय पर हम तैयारी करके बोलना चाहते थे तो हमें लाइब्रेरी जाना पड़ता था, अपने से किताबें ढूंढनी पड़ती थी, देश के एक्सपर्ट्स को ढूंढना पड़ता था कि हमें ब्रीफ करिए, बताइए। आज आपको क्लिक पर सारी चीजें उपलब्ध है, तो कितनी सुविधा है आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, ये आप गौर करें। आवर वन पार्लियामेंट वन पोर्टल, more than a dozen separate websites and addresses have been brought together into a single unified portal, Sansad In. For a member, this is the convenience of a single window, one door to every service, every document and every proceeding in the house. पांचवा, our language give their dues. जब हम सब आए तो बहुत कम लैंग्वेज में था, आज 22 लैंग्वेज में अनुवाद उपलब्ध होता है। उससे बड़ी क्रांतिकारी चीज हुई है। अभी शायद 9 लैंग्वेज में एआई से आपको, यानी आप तमिल में बोले हम हिंदी में सीखे। आप उस दिन की कल्पना करिए कि आप असमी में बोले और कोई आदमी तमिल में तमिल भाषा में सीखे। मुझे याद है मैं जब विद्यार्थी था तो पढ़ने जानने की थोड़ी रुचि थी देश के बारे में, तो 60s में किताब आई, दुनिया में वो चर्चित हुई। दुनिया के जाने माने अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखा, शायद सेलिस हैरिसमैन, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड एहेड। यानी लैंग्वेज राइट्स हुए थे कि लैंग्वेज के आधार पर यह देश खतरे में है। ये उनकी किताब का मर्म था। 10-20 वर्षों तक उस पर चर्चा चलती रही। आज इस एक चीज ने लैंग्वेज की सारी चीजों को खत्म कर दिया। आप अपनी भाषा में बोले, हम अपनी भाषा में सुने, और वो प्लेटफॉर्म आज राज्यसभा 9 इस तरह की भाषाओं एआई पर ये चीजें उपलब्ध हैं। सुनिए ये कितनी क्रांतिकारी चीज है। इसी तरह वाणी सेतु, द डिजिटल वीडियो रिपोजिटरी, ये भी बहुत बड़ी संख्या में पुरानी चीजें हैं। पेपरलेस कमिटी मीटिंग्स, पेपरलेस प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस। पहले हमें अटेंडेंस साइन करना पड़ता था। ये 10 मेजर चेंजेस मैं आपको बहुत ब्रीफली बताया। अब मैं अंत में आप सबको धन्यवाद दूंगा। और आदरणीय सभापति जी, आप राज्यसभा के हम सबके मार्गदर्शक हैं। सदन की कार्यवाही को बहुत ही गरिमा से सभी लोगों के साथ सद्भाव धैर्य के साथ आप संचालित करते हैं। हमारा विश्वास है आपका की नोट एड्रेस हम सब के लिए बड़ा इंस्पायरिंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, नमस्कार।